essentials of tort. Okay, the first thing that we are going to do is essentials of tort. Then we will be doing two conditions that are required for tort. Then the legal maxim, that is damnum sine injuria and injuria sine damnum. Okay, in those two um, maxims, we will be discussing about those legal maxims, as well as we will be discussing about the cases. Okay, the common law case as well as the Indian interpretation. Okay, Indian judicial case regarding those maxims. All right. After that, we will be moving on to the fault. Okay, so whether the fault, the importance of fault, okay, in tort. Okay, so these lectures are going to move like this. All right, so the three essential characteristics of tort are: the first essential characteristic that is that it is a civil wrong. Okay, so it's a civil wrong, it's not a crime. Okay, it's not an act against society or the state, it's a civil wrong. As well as the another thing here is that it is neither a breach of contract nor a breach of trust. All right, so every other civil wrong which is neither a breach of trust nor a breach of contract will be categorized as a tort. All right, then the remedy for this is in form of unliquidated damages. Okay, that can be in form of compensation. All right, so unliquidated damages means, because in breach of trust or in breach of trust or breach of contract, so there the damages are liquidated, so those damages are calculable. Okay, those damages are fixed by law, or not by law but basically by the contract or by the trust. Okay, so there the damages are fixed, but here in tort the damages are unliquidated. Okay, those damages are in form of unliquidated damages, which are then on case to case basis fixed by the court of law. All right, so now coming on to this, we will be writing about the first characteristic. So put the heading A, that is tort is a civil wrong. Okay, have you written this? हाँ सर, वो लिखवाया था आपने. Okay, okay, okay. Then move on to the second characteristic, that is tort is other than a mere breach of contract or breach of trust. All right, right. So here just the same thing that we discussed. All right, so right, a tort is that civil wrong which is not exclusively, a tort is that civil wrong which is not exclusively WA जा रहे हो, एक काम करना, वहां पर एक एडिटर है, वीडियो एडिटर, ठीक है, सेकंड फ्लोर पर, नहीं, सेकंड सुनो, सेकंड फ्लोर पर जाओगे, क्या नाम है आपका? अभिषेक, जाना है जरूर, ऐसे, हाँ ऐसे बहाना नहीं बनाना है, ठीक है, सेकंड फ्लोर पर जाओ, सेकंड फ्लोर पर फैकल्टी रूम है राइट साइड, अंदर घुस के, और लेफ्ट साइड कंटेंट रूम है, कंटेंट रूम में सबसे कोने में ज्योति एडिटर है, हाँ ठीक है, तो ज्योति है, उससे मेरी पेन ड्राइव लेके आना, ठीक है, उसको बोलना कि मेरी पेन ड्राइव अमित सर की, मेरा नाम अमित है, तो हाँ बोलना कि अमित सर की जो है पेन ड्राइव देते, ठीक है, हाँ, और लेके और मेरे को लाके देना. सो राइट, a tort is that civil wrong which is not exclusively, a tort is that civil wrong which is not exclusively any other recognized civil wrong such as breach of trust or breach of contract. Okay, such as breach of trust or breach of contract. Okay, एंड दस देखो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं टॉर्ट को, टॉर्ट को एक मेथड होता है आइडेंटिफाई करने का, दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन. ओके, हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी वेदर इट्स अ क्राइम. Okay, if it's a crime then it's not a tort. Then in case of other wrong that is civil in nature, you will identify whether it's a breach of trust. If it's breach of trust then it is not a tort. If it is breach of contract then it is not a tort. So like this we eliminated three things. All right, now in case of so any other, okay, any other type of civil wrong is categorized as tort. All right,
So this is basically the method of elimination. So right, thus tort is identified by the process of elimination. Thus a tort is identified by a process of elimination. Thus tort is identified by the process of elimination. Just give me a second. Huh. So right. So the to determine whether the wrong to determine whether the wrong is a tort or not, we first see whether the wrong is civil or criminal. Okay. So लिखो if civil, check whether it is a breach of contract or breach of trust. लिखो. Why not writing? सर मैंने फ्लो चार्ट बना दिया था आपका वाला इसलिए. Okay. So if civil, check whether it is a breach of contract or a breach of trust, and if neither, the wrong is considered a tort. Okay. Okay. Now write the third essential characteristic of tort. Right? Tort is redressable by an action for unliquidated damages. सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी टॉर्ट में क्या है? तो टॉर्ट में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है damages. First the estimation of damages and then the redressal of this damage by like in form of compensation. All right. So right, the most important remedy in tort law is damages. और देखो वैसे तो ऑल्दो कई लोग ये बात बोलते हैं, many people says this thing कि can a monetary compensation be a substitute to what the harm has happened? But the harm, see, because it has happened, so the harm cannot be reversed. Okay. And so the better thing, the better alternate to basically reverse that particular effect of the harm is to provide compensation. All right. So write this thing that since most harms cannot be reversed, since most harms cannot be reversed, ब्रैकेट में लिख लो एग्जाम्पल, लिख लो इंजरी टू रेपुटेशन. अब रेपुटेशन को इंजरी हो गई है तो ये रिवर्स तो नहीं हो सकता, कैन नॉट बी रिवर्स्ड, कॉमा monetary compensation becomes the practical remedy. Monetary compensation becomes the practical remedy. Okay. So now the practical remedy is the monetary compensation. All right. So तो वो तो देखो प्राइमरी जो है रेमेडी है. एक और रेमेडी होती है, ठीक है, जहां पर कॉन्टिन्यूइंग टॉर्ट अगर हो, ठीक है, अगर बेसिकली ऐसी जगह है कि जहां पर जो है चलते जा रहा है, होते जा रहा है टॉर्ट, वहां पर एक और रेमेडी भी अवेलेबल होती है, दैट इज इंजंक्शन ऑर्डर. ठीक है, जहां पर किसी पर्टिकुलर एक्ट को स्टॉप करने के लिए, जो एक्ट जो है, जो रॉन्ग जो है कॉन्टिन्यूअसली हार्म कर रहा है इंडिविजुअल का राइट,
ठीक है, तो उस केस में इंजंक्शन कैन ऑल्सो बी अ रेमेडी. सो राइट, although damages are the primary remedy, although damages are the primary remedy, comma, other remedies may also be available. ठीक है, राइट. इंजंक्शन, नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो इंजंक्शन. Injunction. So here write, an injunction is used particularly in cases of continuing torts. In cases of continuing torts. Okay. जब टॉर्ट्स जो है वो कंटिन्यूइंग हो तो ऐसे केस में जो है इंजंक्शन इशू किया जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो न्यूसेंस. न्यूसेंस. ठीक है, तो ये जो है बात हो गई यहाँ पे. अच्छा, एक बात बताओ, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब क्या होता है? लिखो, व्हाट इज सर द जहाँ मीनिंग पे ऑफ. हाँ, बोलो बोलो. अमाउंट ऑफ डैमेज जो है वो स्टिपुलेटेड नहीं है, लाइक कॉन्ट्रैक्ट में भी मेंशन कि इन केस ऑफ ब्रीच दिस वुड बी द अमाउंट दैट वुड बी हाँ, कॉम्पेंसेटेड. तो राइट, राइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस? तो लिखो, unliquidated damages are those damages whose amount is not predetermined. Unliquidated damages are those damages whose amount is not predetermined but determined by the court according to the circumstances. सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर कोर्ट उसकी जो है डैमेजेस को डिटरमाइन करता है. सो दैट पर्टिकुलर डैमेज इज कॉल्ड एज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस. ऑलराइट, ठीक है. और ऐसे ये भी बात लिख लो, पार्टीज आर यूजुअली स्ट्रेंजर्स बिफोर द टॉर्ट अकर्स and the extent of harm cannot be predicted in advance. ठीक है, तो अब आ जाओ, एक पेज चेंज करके पुट अ हेडिंग एसेंशियल कंडीशंस ऑफ टॉर्ट. ओके, देखो, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ टॉर्ट की जहां बात करें, तो देखो, दो एसेंशियल कंडीशन है टॉर्ट की. ठीक है, जो पहली एसेंशियल कंडीशन है टॉर्ट के होने की, दैट इज बेसिकली, देखो, टॉर्ट में या तो कोई एक्ट है, ठीक है, जो एक्ट हुआ है, दैट इज इन टर्न कॉल्ड एज कमीशन. जो बोलते हैं ना, कमीशन ऑफ ऑफेंस. ठीक है, तो ये क्या है? या तो एक एक्ट है जो कि हुआ है, which in turn has led to the violation of some other person's legal right. ठीक है, या तो कोई एक्ट हुआ है या फिर कोई ओमिशन हुआ है. कोई ओमिशन हुआ है. ठीक है, ओमिशन मतलब कि someone was bound to act in a certain way, that was his legal duty to act in a certain way, but that particular person has not done that particular act which he was bound to do. All right, so one can be either the act has happened or the omission of the act has happened. ठीक है,
तो इन दोनों में से कुछ भी होना जो है दैट इज मैंडेटरी, होना जरूरी है, ठीक है, होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है। इसके साथ में एक दूसरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल होनी चाहिए। द सेकेंड रिक्वायरमेंट मस्ट ऑल्सो बी फुलफिल्ड, दैट इज अ हार्म हैज हैपेंड। हार्म होना चाहिए, इट इज मैंडेट। नाउ हार्म कैन बी बेसिकली ऑफ टू टाइप। एक तो है कोई भी फिजिकल हार्म, ठीक है, एक तो होता है कोई भी फिजिकल हार्म, और दूसरा अभी इधर देखो, अभी बस इधर देखो, एक तो होता है कोई भी फिजिकल हार्म, ठीक है, यहां हम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ फिजिकल हार्म। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज एनी सर्टेन टाइप ऑफ लीगल इंजरी। हार्म और, ठीक है, लीगल इंजरी। आ रही है बात समझ में? तो दीज आर द टू कंडीशंस दैट मस्ट बी देयर। एक तो या तो कोई एक्ट हुआ है या कोई ओमिशन ऑफ एक्ट हुआ है, और उस या तो एक्ट से या तो इस एक्ट से या फिर इस ओमिशन से लीगल राइट अगर वायलेट होता है, देन ओनली टॉर्ट इज सेट टू हैपन। ऑलराइट, तो ऐसे दो कंडीशंस लिखो, लिखो, to constitute a tort, it is essential that the following two conditions are satisfied. That the following two conditions are satisfied. जरूरी है कि ये दो कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई होनी जरूरी है, ठीक है। कौन कौन सी, अभी इसको बॉक्स में डाल के लिखना, ठीक है। पुट द फॉलोइंग इन बॉक्स, नंबर वन, या लिख लो फिर बॉक्स में डाल देना, इन्हीं दोनों को फिर एक एक करके समझेंगे, ठीक है। So put the first one. There must be some act or omission on the part of the defendant. All right. And number two, right? The act or omission should result in legal damages. The act or omission should result in legal damages. ब्रैकेट में इंजूरिया को कहते हैं इंजूरिया, ठीक है, इंजूरिया। लिख लो ब्रैकेट में एक, या ऐसे लिखो आई ई, दैट इज वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ, ठीक है। ओके, तो द थिंग हियर इज कि एक तो या तो कोई एक्ट या ओमिशन हुआ हो, और साथ में उस एक्ट या ओमिशन से कोई लीगल राइट वायलेट हुआ हो। So here we always talks about injury. Now whatever type of injury it be, ठीक है, इंजरी होनी चाहिए, ठीक है। So injury must be there. So now put the very first heading. तो पहली हेडिंग अब लिखो, उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक्ट और ओमिशन, एक्ट और ओमिशन। अरे यार एक टॉपिक छूट गया, लॉ ऑफ टॉर्ट या लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ओके। So after this we will do that, ठीक है। सो राइट, मुझे लग ही रहा था कि कुछ तो है, ठीक है। तो राइट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट इज दैट, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ टॉर्ट इज दैट
For a person to be liable in tort, for a person to be liable in tort, there must be either, there must be either, now write like this, there must be either a wrongful act, ठीक है, या ऐसे एक्ट को लिख लो ब्रैकेट में और wrongful को कर लो अंडरलाइन और फिर यहां लिखो a wrongful act, ऐसे लिखो doing something which a person is not legally expected to do, ऐसा काम करना, the law doesn't expect you to do that. ठीक है, और now write second, till a wrongful omission, a wrongful omission, ठीक है, ऐसे लिख लो इसमें एरो लगा के, failing to do something which a person is legally required to do, failing to do something which a person is legally required to do, ठीक है, failing to do something which a person is legally required to do, okay. तो इसको हम क्या कहेंगे, ये तो है देखो एक पॉजिटिव कंडक्ट, ठीक है, तो ये बेसिकली एक एक्ट है और ये है एक नेगेटिव कंडक्ट, ठीक है, तो अब ऐसे लिखो, thus tortious liability may arise from positive conduct or failure to perform a legal duty, from positive conduct or failure to perform a legal duty, or failure to perform a legal duty, failure to perform a legal duty, all right. ऐसे लिख लो, एग्जाम में लिख के आओगे, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. wrongful act plus legal injury, or breach of legal duty, all right, write this. अब ऐसे पहले wrongful act को समझेंगे, फिर wrongful omission को समझेंगे, ऐसे लिखो, a wrongful act refers to, a wrongful act refers to a positive act done by a person, wrongful act refers to a positive act done by a person which violates the legal rights of another person.
अच्छा, to all of you, whether this time is feasible or evening time? Which Sir, time this is time. more? This time. Yes, sir. I was considering to shift the class in the evening. मतलब अगर अगर बाकी सबके लिए कंफर्टेबल है तो वो चलेगा, बट प्रेफरेबली ये टाइम, बिकॉज़ इवनिंग पूरा मिल जाता है देन। हाँ, क्या मयंक? सर मेरी वो जीएस की क्लासेस रहती है इवनिंग को। बस अब पक्का देखना, इवनिंग ही करवाऊंगा देखना। मयंक को बस लॉ पढ़ाएंगे, मयंक को जीएस नहीं पढ़ने देंगे। ठीक है, मयंक विल ओनली लर्न लॉ, खत्म बात। ठीक है, चलो अभी मैं मेल कर रहा हूँ, प्लीज शिफ्ट द टाइमिंग ऑफ द क्लास टू इवनिंग। ठीक है। चलो लिखो। तो राइट, a wrongful act refers to a positive act done by a person which violates the legal rights of another person. देखो, अब जैसे मान लो इसमें क्या है, ए पर्सन है, ए ने बी का क्या किया, डिफेमेशन किया, फॉर एग्जाम्पल बाई वर्ड्स ऑफ माउथ, बोल करके कुछ डिफेमेशन किया। अब जो ये वर्ड्स ऑफ माउथ थे, तो इन वर्ड्स ऑफ माउथ से क्या हुआ, इन वर्ड्स ऑफ माउथ से एक्चुअली जो ये इंसान था, इस इंसान का राइट टू रेप्यूटेशन हार्म हुआ। सो इन टर्न दिस एक्ट, this what the person acted, spoke something that violated the right of that right of, तो ऐसे एक एग्जांपल में लिख लो, if a person publishes a statement harming the reputation of another person, if a person publishes something harming the reputation of another person, it becomes defamation. Where the defendant is liable because he performed a wrongful act. Defendant is liable because he performed a wrongful act. ठीक है, क्योंकि उसने एक wrongful act परफॉर्म किया। ठीक है, क्लियर है? नाउ राइट, wrongful omission क्या है? ठीक है, तो a wrongful omission arises when a person, अच्छा फिर क्या होगा अगर एक मान लो एक सिचुएशन है जिसमें ऐसा कुछ हुआ है कि एक इंसान ने या तो कोई एक्ट किया है या ओमिशन किया है दैट इज मोरली रॉन्ग, मोरली 100% रॉन्ग, फिर उसमें क्या किया जाएगा, उसमें कैसे एनालाइज करोगे उस केस को, बताओ? सर दैट वुड डिपेंड कि उस मॉरली रॉन्ग एक्ट से सामने वाले को इंजरी हुई है या नहीं अरे हुई वेरी है। गुड, एक्सेलेंट, है ना? प्रीवियस स्लाइड में तो हमने देखा टू एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स या कंडीशंस, ठीक है, या तो कोई एक्ट है या ओमिशन है, बट व्हाट हैज टू बी हार्म, इंजरी। Injuria, whether has happened or not, morality is very much far from the tortious liability. ठीक है, so लिखो, a wrongful omission arises when a person fails to perform a legal duty imposed by law. Legal duty imposed by law, and such failure causes harm to another person. And such failure causes harm to another person. यहाँ ऐसे लिखो, the key requirement, the key requirement is the existence of a legal duty to act. So key requirement is the existence of a legal duty to act.
कोई भी एक्ट करने के लिए एक लीगल ड्यूटी का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या मतलब, अब मान के चलो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ए, उस पर्सन ए ने ये देखा कि ही इज अ, फॉर एग्जाम्पल कोई एक मान लो पब्लिक पार्क है, ठीक है, देयर इज अ पब्लिक पार्क एंड ही स्टार्टेड क्रिएटिंग न्यूसेंस इन द पब्लिक पार्क, ओके। तो अब उसने क्या देखा, या फिर मान के चलो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है, एक क्लासिक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसको ये बात पता है कि एक पार्क में देयर इज अ ट्री, ठीक है। अब मान लो उस पार्क में ट्री है और वो ट्री पॉइजनस है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर उस एमसीडी ने उस पेड़ को ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है, मतलब ओमिटेड, उसने कोई प्रोटेक्शन नहीं रखा उस पेड़ के आसपास ताकि कोई जो है बड़ा बच्चा आ ना जाए उसमें, आ करके जो है उसके लीफ को कोई जो है मुंह पे ना लगा ले ताकि उसकी डेथ ना हो या वो बीमार ना हो। तो एमसीडी ने क्या किया, नहीं उसको जो है एनसर्कल किया, ठीक है। अब ऐसे केस में क्योंकि एमसीडी ने उसको एनसर्कल नहीं किया, तो ऐसे में क्या होगा, क्या इसमें टॉर्टियस लाइबिलिटी इंपोज होगी? बिल्कुल होगी। क्यों होगी? बिकॉज इट वाज अ लीगल ड्यूटी of MCD to basically protect the public order, or basically it was legal for the MCD to protect that particular tree from being exposed to any person। आ रही है बात समझ में? बट वहीं अगर मान के चलो उसी पार्क में एक स्विमिंग पूल भी है या उसी जगह पर एक स्विमिंग पूल है, उसमें एक बच्चा डूब रहा था, उस बहुत गहरा स्विमिंग पूल था, तो उससे थोड़ा बच्चा बड़ा एक लड़का है, मान लो 17 18 18 साल का है मान लो, उसने क्या किया, वो डर गया उसको देख के और उसने उस बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की। तो यहां पर भी ही ओमिटेड, उसने एक जो है एक चीज, एक एक्ट को ओमिट किया, उसने नहीं परफॉर्म किया एक एक्ट, उसको बचाना चाहिए था। बट इन दिस केस हाँ, उसमें इंजरी भी हुई है, जो बच्चा डूब रहा था उसका राइट टू लाइफ हार्म हुआ, इंजरी भी हुई है, एक ओमिशन भी हुआ है कि उसने जा करके उस बच्चे को नहीं बचाया उस पब्लिक पार्क में या स्विमिंग पूल में डूबते हुए। बट द थिंग हियर इज इट वाज नॉट हिज लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि वो जो ड्यूटी उसने नहीं परफॉर्म की, क्या वो ड्यूटी उसकी लीगल ड्यूटी थी? अगर वो ड्यूटी उसकी लीगल ड्यूटी थी, तब तो ही वॉज बाउंड टू डू दैट। वही अगर इंसान वहां पर अगर मान के चलो एक ऑफिशियल है हु इज अपॉइंटेड एज अ बेसिकली सेवर, हाँ कि भाई उसका काम है लाइफ सेवर की तरह उसको अपॉइंट किया गया है, इन दैट केस इट इज हिज लीगल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दैट पर्सन, ठीक है। बट इफ दैट पर्सन इज अ रैंडम पर्सन जो कि वहीं पर एंजॉय करने के लिए आया है, रिक्रिएशन के लिए आया है, then in that case it is not the legal duty of that person to protect, then it was a omission. The injury of a person, like injury happened to the legal right of a person because his right to life was basically destroyed now here, violated in this case, but this was not the violation of a legal duty। तो अगर लीगल ड्यूटी वायलेट नहीं हुई है तो उस केस में ओमिशन नहीं आएगा। एक्ट में जो है आपने लीगल राइट को वायलेट किया होना चाहिए और ओमिशन एक लीगल ड्यूटी का होना चाहिए। बात आ रही है ना समझ में? ओमिशन मस्ट बी ऑफ अ लीगल ड्यूटी, ओके, एंड द एक्ट मस्ट बी इन टर्न द वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट ऑफ द अनदर पर्सन, राइट? देन ओनली द tortious liability will arise, okay, write this thing। एग्जाम्पल लिख लो, ये लिख लिया ना आपने कि द की रिक्वायरमेंट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी, ठीक है। तो लीगल ड्यूटी का एग्जिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। सो राइट, एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो। If a municipal corporation maintains a public park, if a municipal corporation maintains a public park, comma, it has a duty to ensure safety. It has a duty to ensure safety. ठीक है, अब इसमें लिखो if it fails to fence off, if it fails to fence off a poisonous tree and a child plucks the fruit and dies,
the corporation may be liable for negligence due to omission. The corporation may be liable for negligence due to omission. For negligence due to omission. And the liability arises. And the liability arises because there was a legal duty to ensure safety in the park. Because there was a legal duty to ensure safety in the park. पार्क में सेफ्टी इंश्योर करने की आपकी लीगल ड्यूटी थी जो कि आपने परफॉर्म नहीं की, जिसके नहीं परफॉर्म करने से ये लाइबिलिटी अराइज होगी. ठीक है, एक और केस लिख लो. ठीक है, तो जैसे मान लो एमसीडी का ये काम है कि कहीं पर एक घंटा घर है, देयर इज अ क्लॉक टावर समवेयर. ठीक है, so the MCD fails to maintain the clock tower and the clock tower due to the non maintenance falls. ठीक है, and it basically causes violation to the legal of the people who are basically moving through that particular road where it falls. So it was the injury to the legal right of the person to basically even live. Okay, so for example, or death happens due to that accident. Now it was the it will be thought because in this case it was the duty, legal duty of the MCD to basically take care of that particular clock tower. In turn, it omitted from that duty, which led to harm of that particular legal right of that particular person. Okay, so due to which this will be considered as tort and tortious liability will arise. All right, so now write one thing. If a municipal corporation fails to maintain a clock tower, if a municipal corporation fails to maintain a clock tower, ठीक है, under its control and the tower collapses, under its control and the tower collapses, and the tower collapses, causing deaths, comma, the corporation will be liable. The corporation will be liable. ऐसे लिख लो, the reason is failure to maintain a public safety. The reason is the failure to maintain a public safety. या सेफ्टी तो गलत हो गया वैसे, ऐसे लिखो टू मेंटेन, या तो अ नहीं आएगा, और ऐसे लिख लो टू मेंटेन अ पब्लिक स्ट्रक्चर in safe conditions. To maintain the public structure in safe conditions. In safe conditions, which is technically a breach of legal duty. Which is technically a breach of legal duty. All right. अब एक ऐसे नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो जो प्रांजल जस्ट सेड दैट थिंग. सो नोट डाल के लिखो, ओनली ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी क्रिएट्स द लायबिलिटी, नॉट ब्रीच ऑफ मोरल ड्यूटी. Only the breach of legal duty creates the liability and not the breach of moral duty. All right. तो केवल लीगल ड्यूटी के ब्रीच से जो है वो लायबिलिटी अराइज होगी, ना कि मोरल ड्यूटी के ब्रीच से. ठीक है, हाँ. तो ऐसे एक एग्जांपल लिख लो, मान लो एक इंसान है स्टार्विंग, और स्टार्व करते करते ही वाज स्टार्विंग टू द एक्सटेंट दैट ही डाइड. In that case, is it a tort? No. Yes, omission has happened because you could have given him some food to eat, and yes, the legal right injuria has happened, the legal injury has happened,
and the injury is of the right of that person to get proper food. Okay, in that case, if A fails to give him the food, then A will not be liable. The tortious liability will not arise on A, because it was not his legal duty, or he was not bound legally to basically do that thing. But in that case, the tortious liability on other bodies might arise. For example, yes, it must arise on state, because state is a welfare state in India, and it is the legal duty, or basically the duty of the state, to provide the basic necessities to everyone, including right to food. That is also recognized by Supreme Court as a part of Article 21, right to life and personal liberty. All right. So ऐसे लिख लो, if a person fails to help a starving man, या फिर मान लो एक डूबते हुए बच्चे को नहीं बचाया किसी ने, ठीक है, fails to help a starving man or does not attempt to save a drowning child. क्या बोलेंगे, ड्रोनिंग बोलेंगे, ड्रोइंग बोलेंगे? ड्रोनिंग स्पेलिंग में तो एन आता है. fails to help a drowning child, such conduct may be morally wrong. Such conduct may be morally wrong, but it does not create tortious liability, because there is no legal duty imposed by law. Because there is no legal duty imposed by law. All right. तो यही बस बात है, लीगल ड्यूटी मस्ट बी देयर. ठीक है, अब देखो पेपर में जाओगे तो एक चीज लिख के आ जाना, ये मेरे द्वारा इन्वेंटेड चीज है, और इसको चाहे इन्वेंटेड कह लो या इसको चाहे डिस्कवर्ड कह लो. ठीक है, तो एक तो पहले फॉर्मूला लिखो. ठीक है, वही सेम फॉर्मूला. एक ऐसे एक रूल लिखो. मेक दिस थिंग AOD rule. Okay, this is AOD rule. Okay, this is AOD rule. ठीक है, तो इसको बना के आ जाओगे. ठीक है, it summarizes the entire tort.
ओके, act or omission is there, violation of legal duty resulting in damage. ठीक है, तो ये जो है मेक दिस एंड एक्सप्लेन दिस, ठीक है, नीचे एक लाइन में एक्सप्लेन भी कर देना है इसको, ठीक है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर हमने पहला तो क्या देखा था, अब आ जाओ वापस से उस कंडीशन पर, ठीक है। तो कंडीशन पहली तो ये थी कि देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन व्हिच वी जस्ट स्टडीड, ठीक है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन थी, और दूसरी कंडीशन वो यही थी कि इट मस्ट द एक्ट और ओमिशन मस्ट रिजल्ट इन लीगल डैमेजेस। उसका जो है कोई ना कोई रिजल्ट क्या होना चाहिए, लीगल डैमेजेस होना चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं लीगल लैंग्वेज में, इट मस्ट बी इंजूरिया, ठीक है, इट मस्ट बी इंजूरिया। और इंजूरिया जो है वो होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ द प्लेंटिव, ठीक है, तभी प्लांट जो है वो वैलिड होगी, ठीक है। तो अब देखो इसी इंजरी से दो मैक्सिम्स निकल के आते हैं, ठीक है, दो मैक्सिम्स ये निकल के आते हैं, एक इंजूरिया साइन डैमनम और एक डैमनम साइन इंजूरिया, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूं, ऐसे बना लो, मेक दिस, ना, डैमनो ही लिखो, ठीक है, इंजूरिया साइन डैमनो, डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनो डैमनम एक ही बात है वैसे तो, ठीक है, डैमनो एंड डैमनम आर बोथ द सेम थिंग, ठीक है। देखो साइन मतलब होता है इंजूरिया साइन डैमनम या डैमनम साइन इंजूरिया, साइन मतलब होता है विदाउट, ठीक है, तो साइन मतलब विदाउट। नाउ इंजूरिया साइन डैमनम मतलब इंजरी, what kind of injury is it talking about, it is talking about the legal injury, legal injury but without any physical damage, तो डैमेज नहीं हुआ है बट केवल लीगल इंजरी जो है वो हुई है। दूसरा है डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब डैमेजेस हुए हैं बट साथ में कोई इंजरी नहीं, ठीक है। तो ये एक है, इसमें दो बहुत फेमस केसेस हैं, तो उन केसेस को फिर हम इंडियन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के साथ में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसे ही नॉर्मली एक केस समझ लो पहले, एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं पहले, ठीक है। पता है वैसे आप लोगों को ये, हाँ याद तो होगा है ना, कॉलेज में पढ़ा यही होता है हमेशा, है ना, याद तो है, ठीक है। तो देखो एक्चुअली जो पहला केस है वो है एशबे वर्सेस वाइट का, ठीक है। अब एशबे वर्सेस वाइट के केस में क्या हुआ था, एक ये बहुत फेमसली कोटेड केस है, इस केस में जो प्लांटिफ था दैट वाज एशबी, ठीक है। अब एशबी को बहुत लोग एशबाई प्रोनाउंस करते हैं, एशबी प्रोनाउंस करते हैं, दैट्स द सेम थिंग, ASHBY। अब एशबी ने क्या किया, एशबी को बेसिकली क्या हुआ था कि वो एक क्वालिफाइड वोटर था, ठीक है, ही वाज अ क्वालिफाइड पार्लियामेंटेरियन वोटर, और इसको जो है वहां का जो वोटिंग ऑफिसर था, ठीक है, उसने इसको गलत तरीके से वोट डालने से रिफ्रेन कर दिया था, ठीक है। तो वहां पर क्या था, वो जो व्हाइट नाम का एशबी वर्सेस व्हाइट है ना ये, तो एशबी वाज द प्लेंटिफ जिसका राइट जो है वो वायलेट हुआ था, साथ में जो व्हाइट था, व्हाइट वाज द ऑफिसर देयर, ठीक है, वोटिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, जिसने इसको जो है वो वोट करने से रोक दिया था, ठीक है। सो ही रिफ्यूज टू गिव हिम द परमिशन टू कास्ट हिज वोट, ही वेंट टू द कोर्ट। आगे जाके ये बात पता चली
कि एक्चुअली अगर इसने वोट दिया भी होता, मतलब जो एशबी है, अगर एशबी ने वो वोट दिया भी होता तो उसने जिस भी पार्टी को या पर्सन को वोट दिया होता, अल्टीमेटली उसके बिना वोट दिए भी जीता वही। ठीक है, अब समझना बात को। एक्चुअली इस केस में क्या हुआ, इंजरी हुई, इंजरी हुई एज इन कि उसका जो राइट टू वोट था वो वायलेट हुआ, इंजरी तो हुई, लीगल इंजरी हुई, लेकिन उससे डैमेज कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि अगर उसने वोट दिया भी होता या उसको वोट देने से रोक भी दिया गया तब भी वही इंसान जीता जिसको उसको जिताना था, जिसको उसको एक वोट देना था। उसके वोट देने या नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो डैमेज नहीं हुआ लेकिन इंजरी हुई। तो ऐसे केस में जो जजमेंट ये आया था, तो जजमेंट ये आया था कि जो डिफेंडेंट है वाइट जो है वो लायबल है इसमें टॉर्ट के। क्यों लायबल है? क्योंकि प्लेंटिफ का जो राइट टू वोट है, मतलब लीगल इंजरी प्लेंटिफ को हुई है, लेकिन उसके रिजल्टेंट अगर हम देखें तो कोई डैमेज नहीं हुआ है। बात आ रही है समझ में? इंजरी हुई है बट डैमेज नहीं हुआ है, तो डैमेज नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ओनली इंजरी। ठीक है, क्लियर है ये बात? पक्का? ओके। तो इसमें जो है यही ठहराया गया था कि वाइट इज बेसिकली लायबल फॉर दिस। ठीक है, अब दूसरा एक और केस ऐसी पहले समझ लेते हैं। ठीक है, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी कुछ नहीं लिखना। देखो, एक दूसरा एक केस था, जिस केस का नाम है ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। ठीक है, तो इसको भी, ये भी याद होगा थोड़ा सा तो, है ना? याद तो सब है ना? तो देखो, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस में क्या हुआ था कि एक स्कूल था। ठीक है, एक स्कूल था, इसमें डिपेंडेंट जो था वो एक स्कूल मास्टर था। एक्चुअली हुआ क्या, ऑलरेडी जो है एक स्कूल था और उस स्कूल के साथ में एक दूसरा स्कूल खोल दिया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल था उसको अपने बच्चों की जो फीस थी वो फीस 40 पेंस से 12 पेंस करनी पड़ गई। ठीक है, क्योंकि उसमें एडमिशन जो बच्चे लेते थे वो बच्चे अब दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने लग गए थे। ठीक है, तो पहले 40 पेंस जो है पेंस स्कूल की फीस थी, बट अब वो 12 पेंस हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, डैमेजेस तो हुए, डैमेजेस तो एविडेंट थे। ये स्कूल के खुलने के बाद ही जो है बच्चों का आना कम हुआ, जिसकी वजह से फीस इतनी कम करनी पड़ी, जिसकी वजह से स्कूल को जो है प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है, बहुत पुराना केस है, 1410 का ये केस है। लेकिन इसमें बाद में जो जजमेंट ये आया कि इसमें कोई रेमेडी नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि इट वाज अ केस ऑफ फेयर कंपटीशन। इसमें जो है बहुत फेयरली कंपटीशन हो रहा था, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, बट दोस इंजरी और द फाइनेंशियल लॉसेस वर नॉट कंसिडर्ड एज लीगल इंजरी। उसमें कोई लीगल इंजरी नहीं हुई, कोई लॉ नहीं वायलेट हुआ, कोई जो है लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। तो ऐसे केस में डैमेज डैमनम साइन इंजूरिया, मतलब डैमेजेस हुए, फाइनेंशियल डैमेजेस हुए, बट विदाउट एनी इंजरी। तो इंजरी से हमें मतलब है यहां पर, क्योंकि इंजरी नहीं हुई है तो हम इस केस को टॉर्टस लाइबिलिटी का केस नहीं मान पाएंगे। बात आ रही है समझ में? तो हियर राइट दिस थिंग, लिखो, पहला एक काम करो, पहला जो हेडिंग डालो, दैट हेडिंग शुड बी इंजूरिया साइन डैमनो। राइट, इंजूरिया साइन डैमनो। You're right. Injuria sine damno means violation of a legal right. Injuria sine damno means violation of a legal right without any actual damages. Without any actual damages, comma loss or harm to the plaintiff. ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, मीन्स इंफ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट and write damnum means
actual loss or damages. अंकित ठीक है, तो अभी लिखो thus the principle states that thus the principle states that whenever a legal right of a person is violated, whenever the legal right of a person is violated, comma, an action in tort is maintainable, an action in tort is maintainable even if no actual loss is suffered, even if no actual loss is suffered. ठीक है, right? One more thing, the law recognizes that every violation of a legal right deserves a remedy. ठीक है, तो अब इसमें केस लिख लो, एशबी वर्सेस वाइट. नहीं, ठीक है, तो राइट इन दिस केस ऐसे लिखो, द प्लेंटिफ एशबाई, द प्लेंटिफ एशबी was a qualified voter in a parliamentary election and the defendant, में इसका नाम लिखो डिफेंडेंट का, white, and the defendant white was a qualified voter, sorry, was a returning officer, was a returning officer comma, wrongfully refused to record the vote of Ashby. फुल स्टॉप डाल के लिखो, द, या नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, द कैंडिडेट whom Ashby wanted to vote, comma, won the election, won the elections. ठीक है, won the elections anyway.
ठीक है, एनीवे प्रांजल आपका तो क्राइम काफी छूट गया है ना? हाँ सर, लास्ट का वहां से छूट गया मेरा। लास्ट के 2-3 लेक्चर्स ही छूटे हैं इनफैक्ट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्योंकि बाकी के मैंने रिकॉर्डेड देख लिए थे इसलिए। सही में क्या? हाँ, मेरा लास्ट वहां तक हो गया है। सेक्शन 7 सेक्सुअल हरासमेंट मेरा पूरा हो गया है। पॉश एक्ट तक हो गया है मेरा। तो क्लास टाइम पर क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि सर उस समय एग्जाम चल रहा था तो मैं रात को देखती थी। प्लस कल मुझे कोर्ट जाना पड़ गया था बिकॉज मैंने अभी वीकली कोर्ट जाना भी शुरू कर दिया है, लाइक प्लान बी के उसमें। सो मंडेज एंड फ्राइडेज को कोर्ट भी जाना होता है। नहीं करो यार। पर अब यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है ना, अब क्योंकि फिर मेरा प्लान बी इज फॉर जुडिशियल सर्विसेज। उसके लिए 3 साल का प्रैक्टिस मैंडेटरी है। अरे तो डू वन थिंग ना, किसी कहीं पर बात कर लो ना, उसके लिए तो यार यू विल गेट द सर सर्टिफिकेट। वो कर दिया एक्चुअली, बट ना वो 3 साल का जो मैंडेट आया है ना, उसमें जो वहां का रजिस्ट्रार होगा कोर्ट का, उसका सर्टिफिकेट लगेगा टू प्रूव दैट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन दैट कोर्ट इन दैट एरिया फॉर द लास्ट 3 years। तो खाली शक्ल दिखाने के लिए मुझे 2 दिन जाना पड़ता है। तो ऑन विच डेज यू गो? मंडेज एंड फ्राइडेज। ठीक है, चलो। तो ये लाइक आई हैव लेस क्लैरिटी, तो क्या इसमें क्या मतलब, अगर इफ समवन इज फॉर एग्जांपल देयर, अगर कोई कॉर्पोरेट में है तो क्या दैट प्रैक्टिस विल नॉट बी काउंटेड? नो नो सर, कॉर्पोरेट का नहीं काउंट होगा। इनफैक्ट इसमें एलएलएम को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है एलएलएम अभी तो तो। नहीं काउंट, वो तो क्लियर है। हाँ, एलएलएम बट इसमें ना एक हाई कोर्ट का जजमेंट, दिल्ली हाई कोर्ट का ही जजमेंट है जिसमें एलएलएम को काउंट कर रखा है। एंड सुप्रीम कोर्ट हैजंट नहीं, बट गिवन सुप्रीम एनी कोर्ट ने तो क्लैरिटी। अभी तक तो कोई ऐसा जो है उसमें नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हाँ, तो प्रॉब्लम यही हो गया था बिकॉज 25 में ही ग्रेजुएट हुई थी मैं, तब मैं खुद आरजेएस के लिए अपेयर करी थी उसी साल के लिए। एंड उसी साल दिस मैंडेट आल्सो केम। तो मुझे, क्योंकि पहले मैंने रजिस्ट्रेशन वगैरह स्टेट बार काउंसिल वगैरह से कुछ नहीं करा रखा था बिकॉज फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी एआईबी के लिए अपियर कर सकते हैं। तो वो चीज मैंने नहीं करा रखी थी। बट बिकॉज ऑफ दिस जजमेंट आई बट हैड टू डू बिफोर ऑल एआईबी दोस यू विल हैव थिंग्स। टू रजिस्टर विद बीसीआई नो? यस सर, वो तो सारा प्रोसीजर हो गया है। अच्छा, वो हो गया ना। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक। कोई नहीं, ठीक है। दिस इज वेरी रॉन्ग, स्पेशली वो जस्टिस सूर्यकांत के किसने कहा ये बात की उनसे इट पहले विल, संजय खन्ना। नहीं नहीं, और एक ने कहा था ना जज ने कि इट विल इम्पैक्ट द गर्ल्स द मोस्ट। यस, इट विल इम्पैक्ट देम यस, because you are डेफिनेटली not सर। from rural background, but the girls who want to actually practice the or want to appear for judiciary examination, so specifically those girls who like they will be waiting for 3 years, and ज्यादातर जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में ये होता है ना कि यार 2 साल एग्जैक्टली तक सर। अपना पढ़ लिया, अब हो गया, बस एलएलबी कर ली, 2 वो साल में अपना पेपर कर रहे हो, निकाल रहे हैं निकालो, नहीं तो उसके बाद अपना शादी करनी है तुम्हारी। अब यहाँ पर इट विल सर टेक बिकॉज 3 years फॉर टेक्निकली, प्रैक्टिस। हाँ टेक्निकली 8 या 9 साल हो जाते हैं बिकॉज 5 साल बीएलएलबी का, हाँ, देन 3 साल ये है। तो नहीं 8 9 नहीं, कम से कम 12 साल, फिर यार 2 3 साल तो कम से कम पेपर क्लियर होने में भी लगेंगे। हाँ, मतलब वो भी जरूरी थोड़ा गारंटी ही नहीं है कि यू विल, फर्स्ट शॉट में होगा। स्टेट पीसीएस का देख रहे हो ना, मतलब कभी हाँ नोटिफिकेशन आता है तो इट गोज ऑन टिल हम्म। 1 साल भर लग जाता है, पता ही नहीं चल रहा है किसकी वैकेंसी आएगी कहाँ आएगी, तो मतलब सर, राजस्थान में ही पहला आया था 2021 में, फिर उसके बाद हम्म। डायरेक्टली 24 में आया, उसके बीच में कोई हाँ तो वैकेंसी आई बताओ ही अब फिर, नहीं। तो मतलब जज बनने का सपना तो टेक्निकली खत्म ही हो गया है लोगों का, वही है। बट चलो, कोई नहीं। वैसे सर है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं कि अभी है ना जो हाँ पिटीशन डाली थी ना रिमूव करने की, उसका हाँ अभी भी हाँ। चल रहा है। अभी हाई कोर्ट से उन्हें एसएलपी गई है या फिर रिकमेंडेशन कौन सी मांगी है। पिटीशन गई है, आई डोंट नो, वो एस एसएलपी एल से हुआ है। एसएलपी रेफरेंस डाली थी। गया है सर बेसिकली। अच्छा, हाँ। रेफरेंस रिव्यू, गया सॉरी है। रिव्यू पिटिशन गया, रिव्यू वही पिटिशन गया था। रिव्यू पिटीशन गया होगा ना। रिव्यू पिटीशन। हाँ। तो रिव्यू गया होगा, हाँ रिव्यू गया होगा। एसएलपी तो ये लोग कहाँ लेंगे यार, पता नहीं क्या ही करेंगे, चलो कोई नहीं।
बहुत, अरे इनफैक्ट इतना chaos हुआ था. I was actually associated with one that institute also where जुडिशरी वाला भी होता था. तो हम्म. वहां तो इवन द स्टूडेंट्स लाइक they paid 2.5 lakh fees also. They हाँ. paid the fees, they started their classes, and just this verdict came. So now their demand was कि now refund us our fees, and institute was like कि कैसे कर रहे हैं. तो very much chaos happened actually. सर तो बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2 हम्म, साल की प्रिपरेशन करी, देन दिस जजमेंट केम, तो अब उनको 3 साल का प्रैक्टिस और करना पड़ेगा. सर सो exactly. हमारे दैट हैज़ बैच बीन में वेरी से ही है ना, अनफेयर ऑन पीपल. हमारे बैच हम्म. में से भी सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ना जुडिशरी की तैयारी ऑलमोस्ट खत्म ही कर चुके थे, हाँ. और बताओ है ना फिर तभी आ गया था. क्या ही बताएं. चलो तो लिखो. Right. Thus, no actual loss was suffered by the plaintiff. Thus, no actual loss was suffered by the plaintiff. ठीक है. लॉस नहीं हुआ कुछ. ठीक है. तो ऐसे लिखो. द इशू वाज दैट वेदर द इशू वाज दैट वेदर the plaintiff could claim damages even though he had suffered no actual loss. वैसे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में. In the judgment, the court held that the defendant was liable. In the judgment, the court held that the defendant was liable. Full stop डाल के लिखो. The wrongful refusal to accept the vote, the wrongful refusal to accept the vote amounted to violation of the plaintiff's legal right to vote. Amounted to the violation of the plaintiff's legal right to vote. And therefore an action was maintainable even though no damage has occurred. इसमें जस्टिस होल्ट की कुछ बातें लिखो. ठीक है. जस्टिस होल्ट ने कुछ कहा है. तो राइट, अकॉर्डिंग टू चीफ जस्टिस होल्ट, ऐसे लिखो वो वाली, टू बी जस्ट इबी रेमेडियम लीगल मैक्सिम है. अब नहीं नहीं, रुको 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 रुको. इन्होंने ये कहा था, where there is a right there must be a remedy. Where there is a right there must be a remedy, and without and ऐसे without law, and a right without a remedy would be meaningless. लिखना नहीं अभी. और ऐसे लिखो, this reasoning reflects the fundamental legal principle of. Then write this, to be just ibi remedium. ऐसे लिख लो, where there is a right there is a remedy bracket में.
जैसे अब एक हेडिंग डालो, इंडियन केस लॉ। तो भीम सिंह ना एक एमएलए थे, ठीक है, जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के। इनको पुलिस ने जो है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की वजह से जो असेंबली का सेशन है उसको अटेंड करने से रोक दिया था, ठीक है। ही वॉज डिनाइड द राइट, और इनको इवन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश नहीं किया गया था, ठीक है। तो वो 24 घंटे के बीच जो है उसको ब्रेक किया गया था और इनको पेश भी नहीं किया गया। इनको इस असेंबली सेशन को अटेंड नहीं करने दिया गया, जिससे ये माना गया कि इनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 21 वाज वायलेटेड अंडर दिस, ठीक है। तो अभी ये जब तक बेसिकली केस डिसाइड हुआ तब तक तो जो है भीम सिंह को रिलीज कर दिया गया था ऑल्दो, बट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि क्योंकि इनका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर द राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 और लीगल राइट बेसिकली द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सेशंस ऑफ द असेंबली, तो ये जो राइट है ये इनके टेक्निकली वायलेट हुए हैं, जिसकी वजह से एक एग्जिम्पलरी कंपेंसेशन इनको ऑफ रुपीज 1985 में सोचो है ऑफ रुपीज 50,000 दिया गया था। 50,000 रुपए का इनको जो है कंपेंसेशन दिया गया था इन भीम सिंह केस, ठीक है। तो इसमें क्योंकि क्लियरली जो है डैमेज हुआ था, लेकिन सॉरी इंजरी हुई थी, बट कोई अरे दोनों हुए थे इसमें, ठीक है। डैमेज भी हुआ था और इट्स अ मिक्स केस ऑफ बोथ, ठीक है। तो डैमेजेस भी हुए थे और साथ में डैमेजेस कैसे मानोगे, एक सेकेंड, डैमेज हुआ है इसमें कोई? हम्म, सर लार्जली देखा जाए नहीं, तो एक्चुअल डैमेज कुछ लार्जली भी हाँ, नहीं है। डैमेज नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ वो प्रोसीडिंग में आई वाज थिंकिंग ऑफ दिस वे कि इसमें बेसिकली डैमेज एज इन कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, तो हो सकता है वो अपने असेंबली का कोई मुद्दा नहीं रख पाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो डैमेज नहीं हुआ है इनको, ठीक है। तो इंजूरियस एंड डैमेज तो लिख लो इसको, राइट। दिस केस अप्लाइड द प्रिंसिपल ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम या इंजूरिया साइन डैमनो, ठीक है। तो फैक्ट्स लिखो। भीम सिंह was a member of legislative assembly. Bhim Singh was a member of legislative assembly of Jammu and Kashmir who was wrongfully detained by the police. Who was wrongfully detained by the police while he was going to attend the assembly session. While he was going to attend the assembly session. Full stop डाल के लिखो. He was not produced before a magistrate within the required time. ऐसे लिखो फुल स्टॉप डाल के नेक्स्ट पॉइंट. Because of this illegal detention, he was prevented from attending the assembly session and his constitutional right and personal liberty under Article 21 was violated.
ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बाय द टाइम द केस वाज डिसाइडेड, बाय द टाइम द केस वाज डिसाइडेड, Beam Singh had already been released. Beam Singh had already been released. फुल स्टॉप डाल के लिखो, however the court held that, however the court held that his legal and constitutional right had been violated and the court awarded exemplary damages of rupees 50,000 as compensation. As compensation. ठीक है, तो फुल स्टॉप डाल के लिखो, दिस केस क्लियरली illustrates, this case clearly illustrates injuria sine demno because the main issue was the violation of legal right rather than actual losses. देखो, दो टाइप के डैमेजेस होते हैं, एक होता है नॉमिनल डैमेज, एक होता है एग्जेम्पलरी डैमेज। तो एग्जेम्पलरी डैमेज थोड़ा मिलेशियस या बहुत आर्बिट्रेरी केसेस में ही दिया जाता है, अदरवाइज जो डैमेज दिया जाता है वो नॉमिनल डैमेज होता है। ठीक है, अगर यही एक एमएलए नहीं रहे होते और अगर इनको असेंबली सेशन से रोका गया होता, नहीं रोका गया होता, और या फिर कोई कहीं मान लो अपने ऑफिस में जाने से रोका गया होता जिसकी वजह से इनका जो है 1 डे लॉस ऑफ पे हो गया होता, उस केस में शायद हो सकता है बहुत कम डैमेज, दैट वुड हैव बीन द नॉमिनल डैमेज। बट क्योंकि इनको अथॉरिटीज ने रोका, मलेशियस तरीके से रोका, आर्बिट्रेरी अरेस्ट किया, दैट्स व्हाई एन एग्जेम्पलरी जो है कंपनसेशन वाज गिवन या डैमेजेस वाज गिवन। ठीक है, तो इसमें ये है, तो अभी ये हमने देखा, अभी ये काम करो, अब अगली हेडिंग दो बी करके, इसमें लिखो डैमनम साइन इंजूरिया, डैमनम साइन इंजूरिया। डैमनम साइन इंजूरिया, इसका मतलब होता है कि डैमेजेस या लॉसेस तो हुए हैं लेकिन कोई वायलेशन नहीं हुआ है किसी लीगल राइट का। ठीक है, कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हुआ है। सो इन दिस केस राइट, damnum sine injuria means damages or losses, damnum sine injuria means damages or losses without the violation of a legal right, without the violation of a legal right। तो लीगल राइट के बिना वायलेशन के डैमेज होना, ठीक है, इसमें लिखो द मैक्सिम implies that there that mere damages, the maxim applies या implies that mere damages, comma however substantial, comma does not give rise to an action, does not give rise to an action in tort unless
there is infringement of a legal right, unless there is infringement of a legal right. फिर ऐसे लिखो फुल स्टॉप डाल के, thus the law recognizes that not every harm is legally actionable, and often such damage occurs. ये कब होते हैं डैमेजेस? जब किसी का लॉफुल राइट जो है वो एक्सरसाइज करने की कैपेबिलिटी वायलेट हुई हो, ठीक है? तो ऑफन सच डैमेजेस अकर्स व्हेन अ पर्सन, नहीं, जब ये मान लो किसी ने, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ए ने अपना लॉफुल राइट एक्सरसाइज किया, but exercise of this lawful right has resulted into the violation of the right, or basically has caused damages to party B, ठीक है? ये right lawful था, ठीक है? तो अब लिखो, such damage occurs when a person exercises his lawful right, and that lawful right, yeah, and that lawful act indirectly causes harm to another person. ऑलराइट, ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। नीचे एक लाइन लिख लो, लॉस अलोन इज नॉट सफिशिएंट एंड वायलेशन ऑफ लीगल राइट मस्ट बी प्रूव्ड। पुट दिस हेडिंग। ठीक है, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, ठीक है? दिस केस वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है?